give you the answers about and we are just going to deal with the lessons which are in the new syllabus, that is in the reduced syllabus. So let's start with lesson 1, and whenever I say that this is question and answers for the examinations, I don't point out to any selective study. मैं selective study में believe ही नहीं करती हूँ, ये अकेले एक तरीका है जिससे कि मैं बच्चों को question and answer supply कर रही हूँ. All the answers from A to Z are here and इनको शॉर्ट भी कर दिया गया है. आप अगर अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना चाहे तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं. But if you like my channel, kindly subscribe for my channel and don't forget to press the bell icon. So we are going to deal with lesson 1, The Portrait of Lady by Khushwant Singh. Lesson 2, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Gordon Cook and Ellen East. Lesson 4, Landscape of the Soul by Nathalie Trovior. And lesson 5, The Ailing Planet, The Green Movement by Naini Palakwal. So let's start with lesson 1, The Portrait of Lady. Now this is question 1, the 3 phases of author's relation with his grandmother before he left else country to study abroad. That is before the author went out of the country. What were his relations with his grandmother? Actually, grandmother के साथ उन्होंने 3 phases अपने बिताए थे, childhood, early youth, and the third phase was adult, or you can say the childhood, boyhood, and early youth, which we can say semi-adult sort of thing. So उनके 3 phases यहाँ अपन को describe करने हैं. Childhood, when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him. Boyhood, when he went to the city school in a bus, he shared room with grandmother and she could no longer help him in his studies. Early youth, when he went to the university and was given a room of his own, the common link of friendship was snapped. That is, अब grandmother उनके साथ नहीं थी. Now the question 2, 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. The reason was very clear, because she did not like the Western science and their learnings, and she was very pained that they are not teaching anything about God and scriptures there, and as such she was very allergic to the music which the author was learning. Now the question number 3, which says 3 ways in which author's grandmother spent her days after he grew up. Now author तो चले गए, उनको कैसे उनकी grandmother रहती थी. She lived in her room. She had accepted her loneliness, वो अकेले रहने के आदी हो चुकी थी, and she used to spin the wheel, that is चरखा चलाती थी, और दोपहर को वो sparrows को खाना देती थी. Question 4, the odd ways in which the author's mother behaved just before she died. You've got the answer. You can change the answer if you feel like. Question 5, the way in which sparrows expressed their sorrow when the when the author's grandmother died. This is very good, a very touching thing. जब उनकी ग्रैंडमदर की डेथ हो जाती तो बहुत सारी स्पैरोज उनकी ग्रैंडमदर के पास आके उनके चक्कर लगाने लगती हैं एंड क्वाइटली फ्लू करती है. दैट शोज द लव ऑफ एनिमल टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग. नाउ this is talking about the text. The author's grandmother was a religious person. What are the different ways in which we come to know about it? I've given you the answers. Describe the changing relationship between the author and his grandmother. पहले ही अपन ने 3 उसकी स्टेजेस डिस्कस किए हैं. हर स्टेज में रिलेशंस अलग हो गए. फर्स्ट स्टेज जब चाइल्डहुड था तो वो ग्रैंडमदर पे डिपेंडेंट थे. देन बॉयहुड में थोड़ा इंडिपेंडेंट हुए एंड व्हेन ही बिकेम अ अडल्ट ही वेंट अवे टू अनदर कंट्री. सो देयर वाज अ गैप ऑफ रिलेशनशिप. Now we come to the third question of the text. Would you agree the author's grandmother was a person of strong character? If yes, इंस्टेंसेस बताने हैं तो मैं एग्री करती हूँ कि ऑथर की ग्रैंडमदर जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थी, और उसके मैंने इंस्टेंसेस बताए हैं. आप आंसर में नो भी लिख सकते हैं. क्वेश्चन 4, हैव यू नोन समवन लाइक ऑथर्स ग्रैंडमदर. तो इसमें आप अपना बता सकते हैं. यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से आपके लिए एक आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. नाउ थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज. लैंग्वेज जब भी हम पढ़ते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड इट फर्स्ट.
यहाँ मैंने आंसर्स जरूर प्रोवाइड किए हैं, पर आप इसको अपने आप भी लिखने की कोशिश करिए. दे आर वेरी सिंपल एंड शॉर्ट. फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग. आपको यहाँ पे फ्रेज और सेंटेंस का डिफरेंस पता होना चाहिए. फ्रेजेस इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, हमें कुछ पता तो चलता है उनसे, बट दे डोंट मेक अ कंप्लीट सेंस. So these are phrases and a sentence is group of words which make a complete sense. मतलब कि जिससे कि हमें पूरे तरीके से क्या बोल रहे हैं पता चलता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. ये माई ग्रैंड मदर पे यू हैव टू राइट, आई हैव गिवन इट टू यू. आप अपने विचारों को भी यहाँ लिखें तो बहुत अच्छा होगा. नाउ वी कम टू लेसन 2. हियर बेसिकली मैंने ये जो यूट्यूब बनाया ये अकेले, क्योंकि बच्चे इस बार कोविड के कारण काफी क्लासेस ऑनलाइन रही हैं और क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिख पा रहे हैं. सो इट इज बेसिकली कॉपिंग ऑफ द आंसर्स. मेरे यूट्यूब्स हैं, लिंक नीचे दिए गए हैं, हर लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, उनमें भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप वो लिंक्स भी देख सकते हैं. इसलिए आई ऑलवेज इंसिस्ट कि पहले आप लेसन रीड कीजिए, उन लिंक्स को देखिए, उसको अंडरस्टैंड करिए और फिर क्वेश्चन आंसर्स. बेसिकली कॉपिंग के लिए ये है कि आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लें. आपको टेक्स्ट 3 सेक्शंस में है, जो आपको अगली स्लाइड 3 स्लाइड्स में देखने को मिलेगा. दिस इज सेक्शन 1 डिजास्टर स्ट्राइक्स, सेक्शन 2 सर्वाइवल अटेम्प्ट्स, वो लोग कैसे जीवित रहे, सेक्शन 3 जब उन लोगों ने छोटे छोटे आइलैंड्स देखे तो कितनी खुशी हुई. नाउ अगेन टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, हमने जो पढ़ा उसके बारे में हमको डिस्कस करना है अपने पार्टनर्स से, और क्या डिफरेंस करना है, ये क्या डिस्कस करना है ये दिया हुआ है. लाइक व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड द अडल्ट्स व्हेन फेस विद डेंजर. बच्चों के और बड़ों के व्यवहार में क्या अंतर था. बच्चे कॉन्फिडेंट थे क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके साथ थे. एडल्ट्स जो थे वो उस डेंजर को फेस करने के लिए सोल्यूशंस ढूंढ रहे थे. Now we come to question 3. This is the answer 3. Now we come to the next lesson, lesson 4, landscape of the soul. Lesson 3 is omitted. Let's come to our next lesson. That is lesson 5, the ailing planet, the green movement role. मेरा वीडियो जरूर देखें ताकि आप इस लेसन को अंडरस्टैंड कर सके, और रीडिंग जरूर करें लेसन की.
डिस्कशन है, जो ग्रुप्स में आपको डिस्कशन करना है, बट डिस्कशन के क्या पॉइंट्स होने चाहिए वो मैंने आपको यहाँ दे रखे हैं। This is very important to make poster and highlights the importance of the whatever topic आपको दिया गया है पोस्टर मेकिंग में। पहले आप एक अलग से उसके क्या पॉइंट्स होने चाहिए जो हमें उस पोस्टर में बनाने हैं या लिखने हैं, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होती है पोस्टर में। तो पहले आप उस चीजों को एक अलग से रफ में लिख लें और उसके बाद पोस्टर बनाएं ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो। आपको पोस्टर वो होता है जो एक अट्रैक्ट, आपको दूसरे को आपकी तरफ अट्रैक्ट भी करे और उसमें उसको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि आपके जो आप इवेंट कर रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं उसकी पब्लिसिटी भी हो जाए। सो पोस्टर मेकिंग में इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, पहले पॉइंट्स आपको लिख लेने चाहिए। नाउ दिस इज अ लेटर, अ फॉर्मल लेटर विच यू हैव टू राइट टू न्यूज़पेपर। एडिटोरियल कॉलम आपको लिखना है, किस तरह से लिखा जाता है ये मैंने यहाँ पे दिया है। With this, I would like to thank you. I hope so this will be very helpful to you. Thank you very much. Take care, study well and don't take any shortcuts. आपको पूरा रीडिंग करना है, कोर्स बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, आपको पूरा रीडिंग करना है, पूरे को पहले समझना है। वीडियो लिंक्स मेरे नीचे दिए गए हैं, उनसे समझे लेसन को एंड देन यू ट्राई टू डू क्वेश्चन आंसर्स अपने आप। जब आपको अपने आप नहीं बने तो इनसे कॉपी करें। एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी तरह पूरी आपकी जो पोएम्स है हॉर्नबिल्स की, उसके भी कंपाइल्ड आंसर्स आपके लिए मेरे ऑलरेडी वीडियो में आ चुके हैं, उनको भी देखिए और उनको अंडरस्टैंड करिए। सभी की यूट्यूब लिंक्स नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखें। विद दैट, थैंक यू, बाय।